A guy has hold all the power, has high fucking frequencies, vibration, जिसको पता है कि भाई अपने आप को कैसे conduct करना है, then eventually you see a lot of girls want those guys because they feel safe, man. They don't want to, क्योंकि बंदी की एनर्जी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन उनका chaotic रहता है, so they want to submit to that particular person who has a balance. कि मतलब अगर बंदी की एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वल्नरेबिलिटीज इनसिक्योरिटीज उसके पास ऑलरेडी है एंड शी इज ऑलरेडी फुल ऑन शी इज ऑलरेडी लिविंग इन अ फुल ऑफ इमोशंस, सो शी डजंट वांट टू बी विद अनदर गाय हु हैज इमोशंस ऑल द टाइम. शी वांट्स टू बी विद अ मैन हु एक्चुअली भाई उसके पास सब बैलेंस्ड हो, उसको पता हो कि वो कौन है भाई, उसने अपने अपने हर चीज को कॉन्कर किया हो. My brother, imagine this, you're sitting in the restaurant right now with your beautiful lady. And there are other people in the restaurant as well. और जब भी तू बैठा हुआ है एक एब्सोल्यूट सही बातें चल रही है तेरी और तेरी बंदी के बीच में, एंड देन इवेंचुअली अभी इसी टाइम एक चीज होती है भाई, दरवाजा खुलता है, एक बंदा आता है और दरवाजा खोलता है वो, एंड देन इवेंचुअली ही वॉक्स इन, एंड व्हेन ही वॉक्स इन you don't feel it, you're not seeing there. तू बंदी पे फोकस कर रहा है भाई. Your girlfriend is right next to you and there is this guy from the behind. He's coming, he's approaching, finding, scanning the room and everything. You're not yet aware, but what I'm telling you bro, तेरी बॉडी ने ऑलरेडी वो चीजें फील कर ली हैं. कॉन्शियसली तुझे लग रहा है कि भाई कमरे में कोई नहीं है, कोई नहीं आया अभी, एक हाई एनर्जी नहीं आ रही, तू अपनी बंदी में खोया हुआ है, उसके प्यारे प्यारे होठ देख रहा है, बोल रहा है कि यार I just finished the fucking dinner so let's go and fuck. That's what you're waiting for. And then eventually this guy approaching, you feel a little bit uneasiness. तुझे लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, a little bit of uneasiness, because देख bro, your vibration, your frequencies are not aligned, they are not balanced, they are chaotic. मतलब तेरी बॉडी के अंदर जो म्यूजिक चल रहा है ना एनर्जीज का, जैसे तो न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, तेरा हार्ट पल्स कर रहा है, धड़क रहा है, everything is inside your body is vibrating, but it's not balanced, it's not controlled, it's not fully aligned, it is chaotic bro. That's why you're thinking 100 things at the same time. Oh baby, fucking finish the dinner. Oh, what would be the bill? Oh come on, it's getting late. You're trying to fix your posture. Oh, maybe she won't judge me anything. You're not thinking, you're not calm. Then eventually भाई एक बंदा आता है पीछे से, और जब भी वो यहाँ से जाता है, you feel uneasiness, you feel like कि भाई बॉडी पे ना किसी ने अटैक कर दिया. There is something just happened with me. What is that? That guy, वो जब उस बंदे की एनर्जी जब आई ना भाई, तेरी एनर्जी सबमिट होगी, और उस भाई ने होस्ट कर लिया तेरे नर्वस सिस्टम पे एंड अटैक, एंड समहाउ you lost it. अब तुझे ना अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, because your nervous system just got attacked with a high vibration and high frequencies. You're seeing, देख तुझे लगता है कि भाई जो चीजें आंखों से तू देख रहा है ना, वही चीजें रियलिटी है. For example, there is this TV and it's for, but what if I tell you bro, it is not for, like it's made of matter, I'm made of matter, I'm made of atoms, and it's made of atoms. So there is this thing, there's this gap, you think there is this, ये gap जो है ये सिर्फ खाली है, but what if I tell you bro, this gap is also, there is a sub atoms in the ears, so there is an exchange, because I'm breathing at the same time. So when I'm breathing, when I'm breathing in, it means I'm communicating with the outside world. So it depends कि भाई तू कैसे breathe भी कर रहा है, because when you breathe fast, what it means that you are not calm, you're frustrated, maybe you're angry, maybe you're nervous. It also speaks that who you are, how you feeling. Then eventually ये बंदा आया, ये breathe भी slow कर रहा है, हर एक चीज ना इंटेंट के साथ कर रहा है भाई, ये वॉक भी कर रहा है इंटेंट के साथ कर रहा है, इसके हर एक कदम में ना इनसिक्योरिटीज नहीं है कि इंटेंट है ब्रो. Every footstep that he is taking is fully controlled. His solar plexus are all controlled, all fucking इसके जो solar plexus है ना bro, wait, let me give you an example. जैसे ये बंदा है भाई,
ये जगह सोलर प्लेक्सस का जो धागा है, जो फ्रेम का धागा है, वो जो है उसका भाई सीधा सेंटर ऑफ द अर्थ कोर के साथ जुड़ा हुआ है. सो व्हेन इट इज लाइक कनेक्टेड टू द कोर ऑफ द प्लैनेट, सो इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी कट. मतलब वो बंदा ना एकदम सीधा है, इज नॉट परफॉर्मिंग फॉर द वर्ल्ड बट ही इज एंकर्ड. सो यही जो धागा है ना भाई तेरा, ये कटा हुआ है, ये ढीला है, इसमें पावर नहीं है. जब तू खड़ा होगा ना ब्रो, तू परफॉर्म करेगा दुनिया के लिए, तू अपने आप को सीधा करेगा, तू ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं रखेगा, तू स्लाउच करेगा, तेरी मूवमेंट में भी ना पावर नहीं होगी, तेरे कदमों में के अंदर इंटेंट नहीं होगा भाई, तेरी डिसीजन में डिसाइसिवनेस और सर्टेनिटी नहीं होगी ब्रो, तेरा माइंडसेट भी कंट्रोल नहीं होगा. सो दैट्स हु यू आर. बट एज दिस गाय अप्रोच्ड, everything is fully controlled. His breathing is controlled, his walk is controlled, his body language is controlled, his solar plexus is all aligned. और तब भाई ये जो एनर्जी होती है ना, this sort of aura must, even these sort of guys actually enter the rooms, bro, they attack. And a lot of women, you know, they get impressed, they intrigued, bro, what is it? Because ये लड़कियां जो होती है ना bro, they notice it, animals notice it, crowds notice it, kids notice it. And then boom, you see what happens next. These are the guys who are pure mystery. These are the guys who's pure in control, bro. And what you call that? It's called frame. और जब ये लोंडे चलते हैं ना भाई, एक फ्रेम के साथ चलते हैं, इनकी एनर्जी ना लीक नहीं होती है कहीं से लीक नहीं हो रही कि भाई यार वो मेरा लोगों के परसेप्शन की वजह से अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेते हैं. भाई जो मैं बोल रहा हूँ क्या पता लोगों को पसंद आए, नहीं भाई, जो बोला है ना इसने, इसका कंट्रोल है उसके ऊपर. ही डजंट गिव अ फक वेदर द वर्ल्ड लाइक्स इट और नॉट, वेदर वर्ल्ड लाइक्स इट और नॉट. व्हाट आई सेड, आई मेंट इट. एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्रेम. अ लॉट ऑफ पीपल, भाई तू देखेगा आसपास लोगों के पास फ्रेम ही नहीं है, वो तो हर टाइम अपने डिसीजन चेंज करते हैं, हर टाइम दूसरे बंदे के साथ मिलना हो उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है. दे डोंट नो व्हाट द फक आर दे, दे डोंट नो हाउ टू वॉक, दे डोंट नो हाउ टू कैरी अ कम्युनिकेशन. उनकी जो आई कांटेक्ट होता है ना भाई, वो भी गिरा होता है. अब लुक एट इट, जब वो बंदा एंटर हुआ होगा ना भाई, अब उसने किसी को तो देखा होगा, आसपास लोग होंगे, उस टाइम ब्लिंक किसने पहले किया होगा? ब्लिंक हमेशा उन लोगों ने किया होगा भाई, उस बंदे ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो साइलेंस को ना लोग फील करना चाहते हैं. क्योंकि जब भी वो साइलेंस ज्यादा, वो एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, वो एक ऑरा लेके आ रहा है भाई, डोमिनेंस लेके. पूरा रेस्टोरेंट में जब एंटर हो गया ना, तो लोग अब शेक हो गए. नाउ दे हैव टू फील द साइलेंस, क्योंकि उनका जो धागा है ना, फ्रेम का धागा, वो हल्का है. That's like easily, that can be easily snapped with the social conditioning, with the other people opinions, with their own insecurities, with their own mindset. They don't even believe in themselves. वो कट जाता है. फिर वो, you know, they smile, they try to fill the silence, but वो बंदा नहीं करता. और that's the guy, bro. That is the guy who you actually think, bro, yeah, this is some guy, you know, this is some mystery, intriguing, man, like wow. So you feel it, भाई, जब कल को कुछ होता है ना, these are the people that you actually go for. These are the people you think, bro, these are the people that gonna save me from their tribe. Not somebody who's just gonna keep smiling, slouching, you know, have no confidence about themselves. You know, उनका फ्रेम का धागा है वो कटा हुआ है और हर टाइम चेंज हो रहा है. This is what I'm speaking, bro. It's the frame. अगर तू लोड़ा है ना bro, अपने फ्रेम के ऊपर वर्क कर, अपने फ्रेम के ऊपर bro. लोग बोलते हैं ना भाई, confidence, smile and all that shit. It doesn't work. It won't work unless तूने अपना कोर ठीक नहीं किया. Unless तू silence में ना, देख तेरे को गेम बताता हूँ bro. There are people that are going to say, bro, be confident. But कैसे आएगा confident? जब तेरा जो धागा है, यू नो, माइंडसेट, तेरा जो धागा है फ्रेम का, माइंडसेट का, वो ढीला हुआ है. समझ रहा है ना? मतलब एक वायलिन होता है भाई, यू नो दैट थ्रेड, अगर वो थोड़ा ढीला हो तो म्यूजिक नहीं बनेगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा. थोड़ा ज्यादा टाइट हो तो वो टूट जाएगा. बट एक परफेक्ट टेंशन के साथ होगा ना भाई, वो दुनिया को रुला देगा. डू यू अंडरस्टैंड इट? वो धागा तेरे को अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करना होगा, तेरे को डीप ब्रीथ करना पड़ेगा. यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन योर इनसिक्योरिटीज कि भाई जो मेरी इनसिक्योरिटीज है ना, उनको कन्फ्रंट कर. डोंट गो अवे. अगर तू छोटा है, इफ योर जेनेटिक्स आर नॉट सो गुड, सो हु गिव्स अ फक मैन, यू गोटा कन्फ्रंट इट. बड़े शूज लगा के लंबे होने की कोशिश मत कर. इट मीन्स दो शूज आर कैरिंग यू. If you don't have a great physique, you're a fat, then start working out.
You do understand it? वो धागा ना उस प्रेशर के साथ जब when you're gonna put yourself in those conditions, then eventually bro तेरा वो धागा sharp होता जाएगा और वो ज़्यादा strong होता जाएगा. Then eventually bro you would develop a flame. I would tell you a few tips that how you can do it, bro. So make sure कि bro तू breathing करे नाक से, you know, nasal breathing. और 4 सेकंड इन कर, 4 सेकंड होल्ड कर, boom, 6 सेकंड exhale कर. That's it. Every single day, try to do this thing for 5 or 6 minutes. You would see how your life would be turned out in a month. And next thing is, bro, जब भी किसी बंदे के साथ communicate करता है, then eventually make sure you keep this thing in mind कि भाई रिस्पॉन्ड जो है ना ब्रो 1 या 2 सेकंड बाद देना. क्योंकि जब भी वो साइलेंस है ना, like somebody asked me, hey man, how you doing? अब तू कितना जल्दी bro, I'm good. This is how usually people speaking. This is how usually young men are speaking. It's sad. Yo bro, I'm good. भाई body move क्यों कर रहा है bro? Well, I'm good. No. Take a 1-2 seconds. देख दो अभी जितना मैं टाइम लिया ना 1-2 सेकंड लिया, मेरा बॉडी लैंग्वेज सही है भाई, मैं उतना हंस नहीं रहा, मेरे आई कांटेक्ट में ना पावर है ब्रो, मेरे इवन कि मेरी हैंड जेस्चर में ना ब्रो दैट आई एम एक्चुअली कंट्रोलिंग द एनर्जी, आई एम कंट्रोलिंग दैट, आई एम हैविंग मोर वॉल्यूम, सो इट मींस आई एम हियर द डोमिनेंट. नाउ ही सेड, hey bro, how are you? I'm very well. Look at it. I'm very well. Now, you know, वो जो साइलेंस था ना भाई 2 सेकंड का, वो हैवी हुआ एंड बूम यू केम ओवर इट एंड यू कंट्रोल्ड इट. जब वो उसने बोला हे हाउ आर यू, बूम यू अटैकिंग सेम, नो नथिंग. हे अब उसने बोला हे दिस, हे हाउ आर यू, एंड इवेंचुअली 1 2 अब नाउ यू हैव द टाइम, क्योंकि तूने रिस्पॉन्ड किया ना ब्रो, फिर तुझे यू गोज अप एंड बूम दैट्स इट, आई एम गुड. हे हाउ आर यू, आई एम गुड. नाउ पावरफुल. Hey, how are you? 1 2 वो जो है ना वो ऐसे चलता है bro, and then you go to the top and now you create the dominance. I'm good. I'm very well. Thank you. ऐसे होता bro. So that's the thing you gotta do, man. Make sure you walk on your frame. I met with a lot of young men out there. They don't have a frame. मतलब सबसे important चीज भाई तेरी लाइफ में ना फ्रेम है. Make sure कि तू walk straight करे. You know, walk straight कर. अपने शोल्डर ब्रॉड रख, आई कॉन्टैक्ट शॉर्प रख, बोलना बंद कर. यू डोंट इवन स्पीक, डोंट इवन कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड अनलेस इट्स नॉट रिक्वायर्ड. डोंट पुट योरसेल्फ into the energy which is not helpful for you. You know, these are the things you gotta add in your life and see bro how far you would go. Control yourself. अगर कोई भी माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहा है, उसके साथ ना बातें मत कर. लेट इट फ्लो, लेट इट गो. Try this thing every single day. Sit in your room. वो जो माइंड में रैंडमली थॉट्स आते हैं उनके साथ झगड़ा मत कर, उनसे बातें मत कर. लेट देम फ्लो वो चले जाएंगे and you would have control over yourself. You won't give your easy energy to the world. That's how you win. And the next thing is bro, another thing you can add is visual. You know, डार्क कमरे में बैठ, अंधेरे में, और विजुअल सेटिंग कर और बोल कि भाई वो जो तेरा धागा है ना फ्रेम का, वो पूरा like, you know, it's literally connected with the center of the earth, center point of the earth. It means like it's literally digging all the way to the core of the planet and it's getting stronger. अपने mind को ना वैसे visual दे, and then you would see bro, you are absolutely like कि भाई तू चट्टान की तरह खड़ा है. You know, तू चट्टान की तरह खड़ा है और तू परफॉर्म नहीं कर रहा, तू एंकर्ड है. And that's how you gotta move. जब वो चीज 1 month के लिए करेगा bro, you would see how much you have changed yourself. You would see that how you're gonna create more dominance wherever you would go. As a man, you can only be known by dominance with your energy in alignment, your body posture, you know, your pitch delivery, and what else? Your silence. When you have all those things, bro, you're not a man then. You become a machine, and all those other people, they would come to your energy. They want to be in you because they feel safe now. You see that bro? A guy who is totally mysterious, a guy has hold all the power, has high fucking frequencies, vibration, जिसको पता है कि भाई अपने आप को कैसे conduct करना है, then eventually you see a lot of girls want those guys because they feel safe, man. They don't want to, क्योंकि बंदी की energy already frequencies और vibration उनका chaotic रहता है, so they want to submit to that particular person
who has a balance. कि मतलब अगर बंदी की एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वल्नरेबिलिटीज इनसिक्योरिटीज उसके पास ऑलरेडी है एंड शी इज ऑलरेडी फुल ऑन शी इज ऑलरेडी लिविंग इन अ फुल ऑफ इमोशंस सो शी डजंट वांट टू बी विद अनदर गाय हु हैज इमोशंस ऑल द टाइम शी वांट्स टू बी विद अ मैन हु एक्चुअली भाई उसके पास सब बैलेंस्ड हो उसको पता हो कि वो कौन है भाई उसने अपने अपने हर चीज को कॉन्कर किया हो तो वो वहां चाहेगी ना कि यार बेबी आई एम फकिंग यू नो आई हैव दिस थिंग्स अ प्रॉब्लम बट वो उस बंदे के साथ आना चाहेगी ना ब्रो डू यू अंडरस्टैंड मतलब एक बंदा अगर लड़ाई कर रहा है एक बंदा खुंखार है तो वो दूसरे के साथ थोड़ा रहेगा फिर दोनों झगड़ेंगे राइट नेगेटिव नेगेटिव ब्रो नेगेटिव नेगेटिव रिपल राइट पॉजिटिव नेगेटिव वो फिर बंदी तेरे साथ आएगी बिकॉज यू नो हाउ टू काम द एनर्जी हाउ टू यू नो how to get those you know वो जो tensions है उनको alignment में कैसे लाना है because you see what she is not seeing and you controlling what they can't and then you become not just a fucking human but a G and then bro look at it every other हर एक बंदी हर एक इंसान हर एक बच्चा हर एक animal they all would come to you you would feel it भाई तेरा जो you know heart है bro ये तीन फीट तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ये फील्ड जनरेट करता है ब्रो मींस वाइब्रेशंस आर फ्लोइंग सो यू सी व्हेन समबडी इज कमिंग विद अ हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी भाई वो वाइब वो हाई हो जाती है ब्रो यू सी दैट ओ ब्रो व्हाट्स अप लुक एट इट इट्स हाई एनर्जी ब्रो योर बॉडी इज सेंसिंग इट व्हेन देयर इज सम डिप्रेस्ड मदरफकर कम्स फकिंग आई नो ही इज अ लूजर लग रहा है ना दिख रहा है भाई क्या यार हार रहा है जिंदगी से दैट्स इट एज लॉन्ग अगर तेरी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज और तू खुद को इंटेंट के साथ कंडक्ट नहीं कर रहा भाई तू हारा हुआ है और दुनिया तेरे को बहुत ज्यादा सताएगी मेक श्योर कि अपने नर्वस सिस्टम को अलाइंड कर अपने सोलर प्लेक्सिस का जो वो फ्रेम का धागा आयरन थ्रेड वो पूरा उसकी प्रैक्टिस कर उसको पूरे दुनिया अपनी सेंटर ऑफ द अर्थ कोर के साथ कनेक्ट कर एंड वॉक विद इंटेंट ब्रीद विद इंटेंट you know everything see with intent and then you would see how this world would submit to you bro master these things जब वो फील तेरा हार्ट जनरेट कर रहा है भाई तेरा माइंड 1 इंच तक एनर्जी जनरेट कर रहा है लाइक यू सी दैट दिस यहां तक ब्रो यहां तक तेरा माइंड जो है ना इट्स लाइक देयर आर सो मेनी एनर्जी लाइक यू नो लाइटेड अप शिट वो जनरेट कर रहा है ब्रो तेरा माइंड तेरा हार्ट भी यहां तक कर रहा है सो जो भी उसमें आएगा तो मेक श्योर कि भाई वो फील करे तेरे को यार व्हाट्स अप बोलता है ना कि भाई कुछ लोगों के भाई मेरे इस बंदे के साथ सही बनी यार इसकी वाइब बड़ी मैच हो रही है डू यू अंडरस्टैंड व्हाई बिकॉज़ द वाइब्रेशन एनर्जी गुड शिट इज कमिंग बच्चे कभी कभी इंस्पायर्ड क्यों हो जाते हैं कुछ लोगों से oh so like you know there are some people that just truly get inspired by other people because they actually master it they master the energy they master that how they're gonna conduct क्योंकि लफ्जों में भी ताकत होती है ब्रो because तेरे थॉट तेरे डिसीजन और जब वो एक लफ्ज बन के आता है तो तू एक एनर्जी दे रहा है डू यू अंडरस्टैंड इट व्हेन द एनर्जी गेट फ्लोज एंड दिस यू नो द अदर पीपल माइंड प्रोसेस इट ईयर प्रोसेस इट और वो जो थॉट है वो इवेंचुअली वो एक वाइब्रेशन में जाता है तो वो अलाइंड होता है देन उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है सो वो जिस बंदे ने जो बोला इंस्पायरिंग वर्ड तो वो होस्ट कर लेता है तो फिर तुम्हें गूज बम्प आने लग जाता है भाई यार क्या बोला अब कुछ बंदे होते हैं कोई डिप्रेसिंग सी कहानी सुना देंगे भाई यार यू नो माय डैड जस्ट पास्ड अवे यस्टरडे ओह आई एम सॉरी यू गेट इट गूज बम्प ऑफ सैडनेस बिकॉज वो एक सैड थॉट आया था वो जब सैड थॉट आया उसकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज भी उतने ही लेवल की होंगी वो जब तेरे माइंड में आया तेरे को भी सैडनेस आया ब्रो So it's all that energy vibration at the molecular level. And that's where you gotta attack and that's where you gotta control. And once you're gonna control it, bro, this world would submit. This world would submit to you, bro.